our commodities is Mr. Vijay Sardana from JP Agri. A postgraduate from IIMA, Vijay Sardana is the COO of Jai Prakash Agri Initiatives and Director Achievers Resources. With an experience spanning close to 20 years, Vijay committed himself to the development of efficient and fair commodity markets. This has been done through his projects, trainings, writings, and the research he has undertaken on the subject. Mr. Sardana, can we have you on stage, please? Moving on to the next award, the next special contribution award goes to Mr. Atul Chaturvedi, Adani Wilmar. Atul Chaturvedi, with a career spanning 3 decades, Atul Chaturvedi is a veteran in the commodity markets. As CEO and Director of the Agri-Business, Atul has been associated with the Adani Group since 1998. Atul has been associated with various organizations and is the Deputy Chairman of Soybean Processors Association of India and Co-Chairman of the Castor Council, amongst others. An eminent speaker, his views are widely respected in the commodity markets community. Can we have Mr. Chaturvedi on stage, please? Thank you, Mr. Chaturvedi, for joining us. To present the next set of awards, I would now like to invite on stage Srimati Chanda Kochar, who is here with us. Give her a huge round of applause. And our first award in this category is for the person who is generally referred to as the biggest bull in Indian market and Sultan of Sensex. But today we are inviting him on stage to show you the other side of his personality. Rakesh Jhunjhunwala's first investment was worth ₹5,000. Way back in 1985, a young man entered the BSE ring for the first time, and since then he has grown to become the Pied Piper of Indian bourses. Known as the Sultan of Sensex, Rakesh Jhunjhunwala has become India's answer to Warren Buffett in more ways than one. Known for picking up stocks which generate multiple returns, he is the poster boy of aspiring investors in India. In 2011, Rakesh decided to have a 4th child, as he puts it, and divided his wealth amongst all his 4 kids, the 4th being his philanthropy activities. Rakesh was inspired by his father's teachings to take the path of charity and decided to give away 25% of his wealth in charity in his lifetime. Zee Business salutes the spirit of humanity and philanthropy of the Big Bull. Can we have on stage Mr. Rakesh Jhunjhunwala to receive the award for his philanthropic and charity activities, please? I must thank Zee Business channel for having given me this award. I don't know whether I deserve it or not, but I only want to pray to God that He is the giver of all wealth, and may He give me the power to give more. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Jhunjhunwala. Our next special category award is for the person who started his journey along with Indian economy, I would say, when the Indian economy was about to break out. That was the time when he also kind of broke out. We have with us Mr. Uday Kotak. A cricketer at heart and a number cruncher by brain,
When Uday survived a deadly brain injury while playing cricket in his youth, his family thought this was a miracle. Little did they know that there were more miracles written in Uday's destiny. Uday Kotak started taking baby steps in business in 1985, when India was just waking up to its future destiny. With the help of family and friends, he scrambled together rupees 30 lakh to start his innings in the financial service space of India. Kotak Mahindra was the first Indian NBFC to be converted into a private bank. From creating one of the most valued banks in India to widest ranging broking and financial services business, and from mutual funds to exchanges, Uday has covered the entire spectrum of capital markets. And I would now like to invite him on stage, and we want to honor him for his special contribution to the development of the capital markets in India. Mr. Kotak, would you like to share your thoughts with us? It's a proud moment for me to receive this award from a person who is very dear to all of us, our finance minister, who will soon be the first citizen of our country. And it is indeed a truly proud moment for us to be sitting here and on this very good occasion. And I just wanted to add a few lines on my commitment and my belief in the Indian Seva. And I have seen the journey of how some of the largest names in the world have happened, but I would love to see how each of us in this audience, and along with, of course, hopefully the policymakers with the goodwill of the future President of India, to see the Indian Seva get the benefits and the fruits of a vibrant capital market in our country. Thank you very much, Z, for this award, and to Subhashji. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Kotak. I would now like to thank Shri Subhash Chandra and Srimati Chanda Kuchar for joining us on stage to present the next set of awards, which are for the Viewers' Choice Award. I would now like to invite on stage Shri Samir Aluwalia, editor of Z Business. Give him a huge round of applause. And Geetu, can we have the winners, please? Now, in the commodity segment, the Viewer's Choice Award goes to Vandana Bharti, SMC Global Security. Next award in the Viewer's Choice Award is Mr. Pankaj Jain, Director of Suntech Wealth Max. Mr. Jain, can we have you on stage, please? I would now like to have on stage Shri Puneet Goenka, and we would like to honor our jury members who have always supported us and who have always guided us in this entire process years after years. So I would now invite jury members on stage to receive a special memento from us. Can we have on stage Shri Gultek Chandani, Shri Ramesh Damani, Shri Nilesh Shah, Shri Ashok Mittal, and Shri R. Ramaseshan. Can we have all of you on stage, please? Give them a huge round of applause. Without their support, these awards would not have been possible. Due to rains, Mr. Nilesh Shah is stuck. But give them a huge round of applause. Like I said, without their support, this would not have been possible. Thanks all the jury members. It was a pleasure having you, and you have always guided us. And now, before we sum up the evening, we have a very special token of memory for Shri Pranab Mukherjee. We would like to present him with something
which will always remain a sweet memory. And I request Shri Puneet Goenka to present Shri Pranab Mukherjee with a special gift that we have for him. This was indeed a very proud moment for us to have Mr. Mukherjee between us. Sir, thanks a lot for joining us. Thanks a lot for taking time out from your busy schedule. Thanks a lot. Pleasure having you. It's quite humbling experience because agriculture is supposed to be a non-glamorous, area which is generally working in background away from all limelights. And recognizing the contribution for doing work in agribusiness and agri space is really quite humbling. The Zee business, in fact, has been a big crusader. In fact, Zee business I consider as one of the top business channels, more so for the commodity market. And your Mandi Live is super. जी बिजनेस में मुझे पहली बार मौका दिया था चैनल पे आने का, अपने व्यूज शेयर करने का. आई ओ टू जी बिजनेस एंड अमीश को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी यहाँ पे. और जी ने जो इन्वेस्टर्स के लिए किया है, खासकर कमोडिटी में घर घर तक पहुँचाया है कमोडिटी को, तो जितने ग्राउंड लेवल पे जी ने पहुँचाया है, ये हैट्स ऑफ टू जी बिजनेस. I feel proud to receive this award. Thanks to Zee Business. I want to thank all the viewers of Zee Business who have appreciated my views, who have voted for me. Thank you Zee Business. बहुत महत्वपूर्ण है. एनालिस्ट को हम रिकॉग्नाइज करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है. उनका मतलब मोटिवेशन बढ़ता है और इससे मार्केट का मैच्योरिटी मानता हूं मैं. बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इससे बहुत उत्साह मिलता है जो यंग एनालिस्ट लोग हैं, और उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कि देश के फाइनेंस वित्त मंत्री एंड द Zee chairman gave the award to them just before he became president. So it's a very good function. I think Zee deserves a lot of congratulations for promoting talent in the industry. ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था और इसमें जो फाइनेंशियल एनालिस्ट को अवार्ड दिया गया, इससे जो हमारे इंडस्ट्री में टैलेंट है इसको और बढ़ावा मिलेगा. एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट Zee बिजनेस फॉर दिस ब्रिलियंट इवेंट. विश्वास था कदम न डगमगाएंगे, उम्मीद थी कामयाबी मिलकर रहेगी, दिल को भरोसा था अपने सपनों पर, खुद की काबिलियत पर. एक जिद थी सबसे आगे निकलने की. द बिग आइडिया. Zee बिजनेस, आपका फायदा. स्वर्गचे मोती म्हणजे सौंदर्य, संपत्ती, प्रगती आणि मनःशांती. स्वर्गचे मोती, अस्सल मोती. विराट कंप्रेसिव जेल, अंबुजा सिमेंट. यही है इंडिया. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का बस एक ही जवाब, टाटा कार. अपनी पुरानी किसी भी मॉडल और कंडीशन की कार हमें बेचिए और पाइए बेस्ट रीसेल मूल्य के साथ 70,000 रुपए तक का फायदा भी. जल्दी कीजिए.
अगले दिन के बाजार के लिए तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ। टॉप एनालिस्ट के सुझाव, बेस्ट शॉर्ट टर्म पिक्स, निफ्टी के लिए रणनीति, एफएनओ स्ट्रेटजी और बहुत कुछ हॉट स्टॉक्स में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 और 10:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च। प्रायोजक है चने का असली स्वाद एमडीएच चना मसाला और पान बहार द हेरिटेज पान मसाला, इससे बेहतर और कहाँ। कमोडिटी मार्केट की हर खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर। ट्रेडिंग कॉल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साथ ही कमोडिटी बाजार का हर उतार चढ़ाव देखिए मेरे साथ। मंडी लाइव अपडेट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:50 पर, 10:20 पर, 2:20 पर और 4:15 पर। जी बिजनेस आपका फायदा। प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पान बहार द हेरिटेज पान मसाला, इससे बेहतर और कहाँ। और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, एमडीएच मसाले। अब मैं बताऊंगा कैसा है आपका भविष्य, कब बदलेगी आपकी किस्मत, कौन से सेक्टर में करें निवेश, कब करें बिजनेस एक्सपेंशन। अब जी बिजनेस पर मैं खोलूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हर राज। अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम के साथ अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। एस्ट्रोनॉमिक्स शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार 7:30 बजे। जी बिजनेस आपका फायदा। ओपनिंग बेल के 1 घंटे बाद 30 मिनट एक्शन के 10 बजे दिन के 10 सबसे अच्छे शेयर 10 कदम में। 10:10 पर एफएलडो अपडेट, ब्रोकर रिपोर्ट और किन शेयरों पर है एफआईज की नजर। 10:20 पर कमोडिटी मार्केट का तड़का, निवेशकों के लिए 360 डिग्री का फायदा। मार्केट ऐप है सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। देखिए बिजनेस और व्यापार की हर खबर की तस्वीर एकदम साफ, क्योंकि देश के हर बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जी बिजनेस, देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल। अब मैं बताऊंगा कैसा है आपका भविष्य, कब बदलेगी आपकी किस्मत, कौन से सेक्टर में करें निवेश, कब करें बिजनेस एक्सपेंशन। अब जी बिजनेस पर मैं खोलूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हर राज। अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम के साथ अपना सवाल लिखकर 57575 पर एसएमएस करें। एस्ट्रोनॉमिक्स शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार 7:30 बजे। जी बिजनेस आपका फायदा। ओपनिंग बेल के 1 घंटे बाद 30 मिनट एक्शन के 10 बजे दिन के 10 सबसे अच्छे शेयर 10 कदम में। 10:10 पर एफएलडो अपडेट, ब्रोकर रिपोर्ट और किन शेयरों पर है एफआईज की नजर। 10:20 पर कमोडिटी मार्केट का तड़का, निवेशकों के लिए 360 डिग्री का फायदा। मार्केट ऐप है सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। अगले दिन के बाजार के लिए तैयारी कीजिए जी बिजनेस के साथ। टॉप एनालिस्ट के सुझाव, बेस्ट शॉर्ट टर्म पिक्स, निफ्टी के लिए रणनीति, एफएनओ स्ट्रेटजी और बहुत कुछ हॉट स्टॉक्स में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 और 10:30 बजे सिर्फ जी बिजनेस पर। प्रायोजक एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च।
प्रायोजक है चने का असली स्वाद MDH चना मसाला और पान बहार द हेरिटेज पान मसाला, इससे बेहतर और कहाँ। आसमान से आग बरस रही, धरती पानी को तरस रही, तो कहीं आया सैलाब है। पर्यावरण पर खतरा तो दुनिया के लिए जीने का संकट। पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बार फिर एक मंच पर आ रहे दुनिया भर के देश। देखिए ब्राजील से Rio+20 समिट 2012 की हर खबर सिर्फ जी बिजनेस पर। देखिए बिजनेस और व्यापार की हर खबर की तस्वीर एकदम साफ, क्योंकि देश के हर बड़े DTH प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जी बिजनेस, देश का पहला हिंदी बिजनेस चैनल। अब मैं बताऊंगा कैसा है आपका भविष्य, कब बदलेगी आपकी किस्मत, कौन से सेक्टर में करें निवेश, कब करें बिजनेस का एक्सपेंशन। अब जी बिजनेस पर मैं खोलूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट का हर राज। अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम के साथ अपना सवाल लिखकर 57575 पर SMS करें। एस्ट्रोनॉमिक्स शनिवार दोपहर 12:30 बजे और रविवार 7:30 बजे। जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार, हॉटस्टार्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजी। भारतीय बाजार के लिए एक ठंडा दिन, लेकिन थोड़े सकारात्मक रुझान के साथ। मोटे तौर पे कहानी यही दिखी कि बाजार ऊपर जाने की स्थिति में अभी अपने आप को नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे फिसलना भी नहीं चाहता, और इसी का नतीजा ये रहा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बड़ी हल्की बढ़त के साथ सेंसेक्स में 37 अंक और निफ्टी को देखें तो यहाँ 17 अंक की बढ़त रही। हालांकि NSE मिड कैप ने जरूर थोड़ी ठीक ठाक बढ़त दिखाई है, और अगर सेंसेक्स का दिन भर का दायरा देखें तो सिर्फ 100 अंक का एक पतला सा दायरा है, उसके बीच में सेंसेक्स पूरे दिन अटका रहा। नीचे 16,850, ऊपर 16,950, इसके बीच में ही सेंसेक्स फंसा रहा, और ऐसी ही कहानी जाहिर है निफ्टी की भी रही, जो मोटे तौर पे तो 5110 और 5140 सिर्फ 30 अंक के दायरे में फंसा रहा, और थोड़ी देर के लिए इसने 5100 का स्तर भी छुआ। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे बाजार का रुख क्या रहेगा। पहले जरा दिन भर की कहानी देख लेते हैं रजत से, फिर बात करेंगे आगे की। बिल्कुल, आज सूत्र में बात करें तो एक रेंज बाउंड मूव तो देखने को मिली, पर बायस यहाँ पर पॉजिटिव था। एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हमने कामकाज किया। बाजार किसी भी लेवल पे अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम कामकाज करते चले जा रहे हैं, 10 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। इसके अलावा 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव माना जा रहा है बाजार के लिए। और इसके चलते अगर इंटरनेशनल फ्रंट पे कुछ पॉजिटिव खबर निकल के आती है तो आने समय के लिए हो सकता है खरीदारी और बढ़ती नजर आए। हालांकि आज के सत्र में 5141 आज के दिन का हाई रहा है, और पॉजिटिव बाजार जो ट्रेडिंग हुई है उसमें कैपिटल गुड्स, मेटल, हेल्थ केयर, पावर, ऑटो काउंटर शामिल थे। हालांकि गिरावट चुनिंदा IT काउंटर्स में और FMCG काउंटर्स में देखने को मिली। काउंटर्स पर से मूव यहाँ पर HCL टेक, ACC, टाटा मोटर्स, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स में आता नजर आया। इनफैक्ट मेटल्स में आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिला, और जो गिरावट देखने को मिली उसमें कोल इंडिया, ITC, भारतीय एयरटेल, TCS
ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जो इंडेक्स को इसमें ट्रैक कर रहे थे। इस समय काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर विदेशी मार्केट से संकेत कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो खरीदारी होती नजर आएगी। इसके अलावा अगर एफआई भारतीय बाजारों में अच्छी वैल्यूएशन के चलते खरीदारी करते हैं तो वो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा भारतीय बाजारों के लिए। तो ये तो रही दिन भर की कहानी, और इसके अलावा बाजार के लिए एक अच्छी खबर ये भी रही कि मॉर्गन स्टैनली कंट्री इंडेक्स में, MSCI इंडेक्स में भारत का वेटेज बढ़ने की संभावना दिख रही है। और इस वेटेज के बढ़ने का सीधा मतलब ये है साधारण भाषा में कि जो विदेशी निवेशक अपनी योजनाएं भारत में निवेश के बारे में फैसला MSCI इंडेक्स के आधार पर करते हैं, वो भारतीय बाजार में और भी पैसा लगा सकते हैं। दरअसल होगा ये कि MSCI इंडेक्स में ताइवान और कोरिया को विकसित देशों की सूची में डाला जाएगा, इस बारे में फैसला होता है। और अगर इस तरह का फैसला किया जाता है तो फिर MSCI इंडेक्स में भारत की रेटिंग जो अभी 641 है वो बढ़कर 8.73% हो जाएगी। और इसका एक मोटा मोटा अनुमान यह है कि 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश भारत में आ सकता है। हालांकि एक संभावना ये भी रहेगी कि सिर्फ कोरिया ही विकसित देशों की सूची में जाए, और वैसी हालत में लगभग 7.25 करोड़ रुपए भारतीय बाजार में आ सकते हैं। अगर ताइवान जाता है तो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आ सकता है। और अगर बात करें अगली चाल की, बाजार में अगली दिशा की बात करें तो यहाँ अलग अलग जानकारों का नजरिया देखते हैं, क्या रुख बन रहा है उनका। पहली राय नितेश चांद की साइक सेंट्री इक्विटीज के, इनके हिसाब से बाजार में जो अगला दिन रहेगा वो थोड़ा कमजोर रह सकता है। 5,080 तक फिसलने की संभावना रहेगी निफ्टी के लिए, ऊपर 5,175 इस दायरे के बीच में। तो मोटे तौर पे 9500 अंक का दायरा रहेगा। 2 हफ्ते के हिसाब से बाजार में एक दायरे का ही कारोबार, दायरा छोटा ही रहेगा, 5,000 से लेकर 5,200 का, ये राय है नितेश की। क्षेत्रों की जहां तक बात है तो अगले दिन के लिए इनका ये मानना है गुरुवार के लिए कि फार्मा क्षेत्र ठीक लग रहा है, थोड़ा बेहतर रहेगा बाजार से, जबकि ऑटो शेयरों में कमजोरी का रुख रहेगा। अनिल मंगनानी निदेशक मॉडर्न शेयर्स के, इनका ही मानना है कि बाजार अगले दिन कमजोर है, 5,070 पर नजर है इनकी, नीचे का लक्ष्य बन रहा है, ऊपर 5,150 पार करना मुश्किल होगा। 2 हफ्ते के लिहाज से भी बाजार में मुनाफा वसूली का ही जोर रहेगा, और इस मुनाफा वसूली में निफ्टी के लिए 4,930 तक फिसलना संभव है। 5,300 ऊपर की सीमा है, इसके आगे जाना मुश्किल होगा। लेकिन इस तरह से लगभग ये कहा जाए कि 300 पौने 300 अंक का, बल्कि ये कहा जाए कि 350 अंक का दायरा बन रहा है इस 2 हफ्ते की अवधि में। एफएमसीजी क्षेत्र अगले दिन के लिए ठीक लग रहा है, जबकि बैंकिंग में कमजोरी की संभावना बन रही है अनिल मंगनानी के हिसाब से। अशोक अग्रवाल स्कॉट सिक्योरिटीज के प्रमुख, इनके हिसाब से बाजार में उतार चढ़ाव का दिन रहेगा अगला, यानी दिशा साफ नहीं। 100 अंक का दायरा इन्होंने भी बनाया है, 5,080 से 5,180 तक का। 2 हफ्ते की बात करें तो दिशा ऊपर है, 4,900 नीचे, 5,380 ऊपर, तो थोड़ा और भी बड़ा दायरा, यहाँ लगभग 4,500 अंक का दायरा। और क्षेत्रों की जहां तक बात है तो एफएमसीजी, फार्मा, ये 2 क्षेत्र ठीक लग रहे हैं, बेहतर लग रहे हैं। दरअसल नितेश ने भी कहा था फार्मा ठीक लग रहा है, अनिल कह रहे हैं एफएमसीजी ठीक लग रहा है, अशोक भी कह रहे हैं कि फार्मा और एफएमसीजी ठीक लग रहा है। मोटे तौर पर ये कि रक्षात्मक क्षेत्र जो है वो अगले दिन के लिए ठीक लग रहे हैं। कमजोर क्षेत्र वैसे कौन सा रहेगा, अशोक जी ने ऐसी कोई राय नहीं दी है, उनके हिसाब से ऐसा कोई क्षेत्र अभी दिख नहीं रहा। अमित गोयल निदेशक पेश के, इनके हिसाब से बाजार एक दायरे में रहेगा और 5,050 से लेकर 5,180 तक का रुख रह सकता है निफ्टी का। 2 हफ्ते के हिसाब से कमजोरी रहेगी, 4,950 तक जाने की संभावना निफ्टी के लिए, और ऊपर 5,250 तक की गुंजाइश लेकर के चलेंगे, लेकिन दिशा नीचे ही मान रहे हैं हमें। धातु क्षेत्र अगले दिन के लिए ठीक लग रहा है, आईटी और एफएमसीजी में कमजोरी की संभावना। तो एफएमसीजी को लेकर अमित की राय बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। अमित हमारे साथ हैं आज, हमारे आज के खास मेहमान हैं, स्वागत है।